We will continue what we were doing yesterday, the tanker numericals. So a question, revise what we did yesterday. So what we did yesterday was very simple. I hope all of you can see the board. Yes, sir. Yeah, okay. So very simple equation, mass is equal to volume into density. And today we will do the one method that what we have done, that this volume and density both should be at same temperature. So volume of the oil may be at different temperature, density given to you may be at different temperature. So today first method, what we call is the DCC method, that is density correction per degree centigrade. So this is given to you, the factor is given to you, what we call coefficient of expansion, or the factor is given that per degree, that if I heat up the oil by 1 degree, how much is the change in density? It is can be 0.6, 0.0006, 7, 8, it varies per degree centigrade. Now if my oil is at 30 degree centigrade and density given to me is at 20 degree centigrade, so I can convert the density. Suppose the density given to me at 20 degree is say 0.85 and I want to calculate the density at 30 degree. So it is very simple, 0.85 into difference in temperature, 30 minus 20 into factor. So that will give me the 0.85 minus. Why? Because temperature is increasing. If temperature is increasing, the density will decrease. It is inversely proportional. Please remember that. The density is, if the temperature goes up, the density decreases. And if the temperature decreases, then density goes up. So ये plus minus sign जो है, this will be, you got to be careful what you are calculating, temperature going up or down. So normally, normal cases, tank dimensions given, ullage is given to you, or the space which is to be left vacant, empty is given to you 2%, 3%, and then you calculate how much volume is available. The tank is there. Now we don't load the tanks 100%. If I say 2% of this tank volume is to be left for expansion, so we subtract. So this is the volume which is available to me. So you calculate the volume, calculate the density, and find out the mass. Okay, let's see. जब question करेंगे तो I think ज़्यादा better हो जाएगा. This is the question. Tank of constant area 10 meter deep has a volume of 3000 meter cube and oil of RD so much is to be loaded. Sir. लिख लीजिए क्वेश्चन सबने. Yes, sir. चलो अटेम्प्ट करोगे या आपको जिसको वॉल्यूम ऑफ टैंक straightway he has given me 3000 cubic meters. Volume to be left for expansion or to be allowed for expansion 2%, isn't it? So 2% of this 3000 into 2 upon 100 is equal to 60 meter cube. How much volume is available for me for loading? Volume available कितना होगा? 2940 cubic meter. 3000 minus 60, isn't it? 2940 meter cube. मेरे पास इतना वॉल्यूम है लोड करने के लिए एंड मेरे पास डेंसिटी है 30 डिग्री पे, बट आई एम गोइंग टू लोड एट 38. सो डेंसिटी एट 38 क्या हो जाएगी? विल बी इक्वल टू 0.86 minus. Why? Because I am loading at higher temperature. Density given is at 30 degrees less. Difference in temperature 38 minus 30 into the factor. New density at 38 degrees Celsius 0.852. 0.852. Okay, very good. Now mass of oil loaded is very simple. I have volume into density at 38 degrees Celsius. correct. 0.852 कितना आ गया? 2514.29. Yes, sir. 4.29 मैट्रिक. आपका एक आंसर हो गया. Now to calculate the ullage. To calculate ullage. और यहाँ पे तो easy है. I know the volume. Can you calculate what is the area of the tank? Yes, sir. Divide by 10. Right. So मेरे पास area of the tank is there. So I want to calculate the ullage. Volume available is 2940. Area of tank is equal to 3000 divided by 10 is equal to 300 square meter. Now it is very simple. If I divide the volume by area, I get the height of oil. Therefore, height of oil in the tank will be 2940 divided by 300. 9.8. So ullage will be 0.2 meters. Yeah, 9.8 meter. Now again, just to understand, oil है यहाँ तक. I have got this 9.8. This is the ullage. तो ये कितनी होगी? 10 मीटर इसकी हाइट है. Therefore, तो आपने लिखना कैसे है? Therefore, the ullage is 10 minus, or you can write here
height of tank minus height of oil is equal to 10 minus 2 equal to of 10 minus 9.8 equal to 0.2 meter. 10 minus 9.8 is equal to 0.2 meter. तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया. क्लियर? सर इसमें आपने हाइट निकालने के लिए ये 2940 लिया है और एरिया के लिए 3000. होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. Into breadth into height, isn't it? This length and breadth. If I divide Yeah. this volume and नहीं, breadth and the मेरा डाउट है ये आपने 29 तो मैंने अब यहाँ पे किया मैं तो 0.2 मीटर आया. Then we will stop it. Okay? अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको कहता हूँ. अब यहाँ पे तो उसने कहा 2% of the volume of the tank to be left for expansion. Now I say the 2% of the volume of oil to be left is to be left for expansion. अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया. लोडिंग टेम्परेचर दिया. आई कीप एवरीथिंग सेम. 2% of the volume of oil to be loaded is to be left for expansion. Then calculate 2% of the volume of oil to be is left for expansion. Sir 0.196 sir 2515.31. Very good. बाकियों को भी अटेम्प्ट एक ही बात है. Now we are into the metric system, so we are not going into the old system की. So metric ton और ton is again same. Metric ton में we are into the metric system. Ton इसका मतलब है this is 1000 kg. Okay, so अभी we are not discussing short ton and long ton. Americans do this short ton, long ton. So we are handling only this is metric ton means 1000 kg वाला. ठीक है. So आप उसे ton लिख दीजिए. metric ton एक ही बात. So normal we are using that we are into metric system, तो हम इसे metric ton लिखते हैं. Means metric system. सर सेकंड पार्ट समझा दीजिए. अब यहाँ पे तो था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टैंक इज व्हाट इज आवर वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम इज 3000. सो आई एज्यूम लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लोडेड. नाउ दैट मींस V प्लस वो कहता है 2% ऑफ द ऑयल टू बी लोडेड. सो वी हैव टेकन V एज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लोडेड. दैट मींस V प्लस 2% ऑफ V प्लस 2% of amount of oil I am going to load and 2% of this V is to be left for expansion. तब आपका जो टोटल टैंक है वो 3000 के बराबर होना चाहिए. इसको सॉल्व कर लेता हूँ. सो V प्लस दिस विल बी 0.02 V 3000. तो V की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3. ये V क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लोडेड. सो दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ ऑयल टू बी लोडेड इज इक्वल टू दिस मच. पहले हमारा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी एट 38. तो अब यहाँ पे आ गया 2941.176 इंटू कितनी थी डेंसिटी? 8552. 852. आंसर आ जाएगा 2515 मेट्रिक टन. एंड सिमिलरली अलेज के लिए एरिया से डिवाइड करता हूँ. दैट वी बी द वॉल्यूम 2%, 3%, 4%. आई थिंक यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट 2%, 3%. बच्चे इसमें कह रहा है 2. गो अहेड विनोद. Yes sir. Correct sir. ठीक है, अंडरस्टूड. अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है. अब क्या हो जाता है ना, व्हेन एक्चुअली द शिप डज, जब शिप लोड करता है, हमने एक टेम्परेचर पे लोड पोर्ट पे, सपोज आई एम लोडिंग एट से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर लोडिंग आई प्रोसीड फॉर द डिस्चार्ज पोर्ट डेस्टिनेशन के लिए. रास्ते में मेरा टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है से 40 डिग्री. आई नो कि मेरा वॉइस में मेरे को मैंने लोड किया 30 डिग्री पे. मैंने अपने अंदाजे से कैलकुलेट किया. ओके, एग्जाम्पल 0.5 मीटर, हाफ आ मीटर या 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मैंने अलेज रख के. एंड नाउ इफ आई गो टू ड्यूरिंग द वॉयज आई नो टेम्परेचर इज गोइंग टू गो 40 डिग्री. अब यहाँ पे अलेज मेरी कम होगी. सो इट मे नॉट बी गुड बिकॉज आई वॉन्ट ऑल द टाइम से हाफ आ मीटर. द वॉल्यूम ऑफ द टैंक शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन. अब आपके पास उसने ये डेटा दे दिया कि अब वॉयज में ऑयल जो है एट एनी टाइम even when the temperature goes to 40 degree my alley should not decrease from 0.5 or 1 meter 2 meter जो भी उसने क्वेश्चन में दिया. and then he gives you density जैसे पहले था density at 20 degree 30 degree so much. यहाँ पे आप 30 डिग्री पे लोड कर रहे हो, टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है. अब यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगा. isn't it? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? एनीबॉडी? चलो टैंकर वाले तो कॉमन किया होगा आपने कि मेरे पे ये डेटा है कि वॉयज टेम्परेचर इतना है एंड ड्यूरिंग द वॉयज माय अले शुड नॉट डिक्रीज और से 0.5 1 सम अमाउंट ही हैज गिवन. हाउ मच शुड आई, हाउ टू कैलकुलेट, या यहाँ पे मैं कितनी अलेज रखूँ
ताकि मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये अलेज 0.5 रहे। अब आपको ये भी कंफ्यूजन है कि अलेज नॉर्मली जैसे यहाँ से अलेज पोर्ट से ले, कैसे बताइए? कुछ डोंट वरी, आप जितना बच्चे सोचोगे जितना बोलोगे, आई वांट यू टू इंटरेक्ट। फैक्टर नहीं दिया रहेगा, करेक्शन फैक्टर सब दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, वो डेंसिटी करेक्शन फैक्टर सब दिया हुआ है। सर। तो 0.5 मीटर जब हमें सर वो रखना होगा अलेज, तो 40 डिग्री सेल्सियस की मास ऑफ द, वेरी राइट। सो मेरे पास ये पैरामीटर आ गए यहाँ पे कि भाई ओके, मैंने यहाँ पे 1 मीटर या 0.5 मीटर जो भी अलेज रखनी है, चलो सिंप्लिसिटी के लिए हम कहते हैं 1 मीटर अलेज। ये टैंक की डायमेंशन 30 बाय 20 बाय 10 मीटर, दिस इज द अलेज पोर्ट। एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए ये अलेज पोर्ट जो आपका 1 मीटर डेक से ऊपर है, एंड क्वेश्चन में कहता है देयर शुड बी ऑल द टाइम अलेज ऑफ 1.5 मीटर होनी चाहिए एट 40 डिग्री। तो अब मेरे पास पैरामीटर आ गए। Here I can calculate the maximum volume at 40 degree कितना होना चाहिए, isn't it? Maximum volume in my tank, maximum volume at 40 degree I can very easily calculate. तेल जब expand होगा तो कितना होना चाहिए? ये 1.5। हाइट ऑफ ऑयल कितनी होगी मेरे टैंक? इसकी हाइट है तो सर ये 1 मीटर अलेज पोर्ट से लेंगे। समटाइम्स अलेज पोर्ट इज अबव द डेक, समटाइम इट कैन बी ऑन डेक। क्वेश्चन में कैसा अलेज पोर्ट इज ऑन डेक लेवल। अब आपने ये कैलकुलेट कर लिया। सो दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द अलेज की हाइट ऑफ टैंक प्लस जो अलेज पोर्ट की हाइट है एंड माइनस द अलेज, या फिर आप अलेज में से अलेज, अब इस वॉल्यूम को आई कैन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी टू कैलकुलेट द मास इज इक्वल टू ए इंटू की डेंसिटी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मास विल बी इक्वल टू ए इंटू डेंसिटी एट 40 डिग्री। बेसिक फंडामेंटल लगा दिया कि यार मास रिमेन्स कांस्टेंट। अब अगर ओके वेरी गुड। सो डेंसिटी में तो ये बी है, जो भी मेरा मास आया था उसको मैंने डेंसिटी एट 30 डिग्री से डिवाइड किया तो मेरे पास वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम को मैं एरिया से वॉल्यूम को एरिया से मेरे पास आ गई, तो मैं अलेज निकाल सकता हूँ। इतना तेल है, आई कैन कैलकुलेट द अलेज फ्रॉम हियर। चलो ये क्वेश्चन भी करते हैं क्विकली, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है सब? एक्सक्यूज मी सर, आपका आंसर 380.02। ये तो टैंक खाली है आपका। 20.5 अगर अलेज है तो खाली हवा 1.5 मीटर ही तेल है उसमें। सर अलेज 1.45 मीटर, वॉल्यूम लोडेड एट लोड पोर्ट, ये पूछना सर। या हाउ मच वॉल्यूम एट मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है? वॉल्यूम एट मैक्सिमम टेम्परेचर सर 642 मीटर क्यूब। ओके वेरी गुड। उसके बाद मास डेंसिटी थी सर 0.8058 1.20। सर 1.74 मीटर। सर 1.61। ओके किसी की 1.74 है, किसी की 1.6 है। कीजिए, नेवर माइंड, शुरू आती। सो मैक्स आई कैलकुलेट द डेंसिटी एट 41 माइनस 15 इनटू द फैक्टर डेंसिटी एट आ गई। अब 1 पे नहीं बच्चे बोलो। सो में से 15 पे 20 स्टेप्स दिखाता हूँ, ये देखो। मैक्सिमम वॉल्यूम एट 38 डिग्री इज इक्वल टू सो मच, करेक्ट। एसजी एट 38.81 minus this is equal to 0.7962. Quantity of cargo in tank volume into density at voice temperature 528.36. Straight away एक आंसर आ गया, quantity of oil so many tons. Now to calculate allege at load port, volume into density at 22 equal to mass which is constant. 5 to 8 तो 5 to 8 ही रहने वाला है। डेंसिटी है 22, मैं निकाल लेता हूँ 0.8058। इतनी आई ना डेंसिटी। ड्रिंक स्टॉप करूंगा। सडनली द टेम्परेचर इज गॉन अप टू 41। उस पे अलेज कितनी आ जाएगी? सेम वॉल्यूम एट 41 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी एट 41 इक्वल्स मास विच इज कांस्टेंट। एंड वो सब पढ़ता जाए। 41 पे क्वेश्चन करोगे आपको दिख भी जाए। सो प्लीज इसको आपने कॉपी पे रखना है, भूलना नहीं है। ये नहीं कि हम आगे चलते जाएं तो पीछे हम भूल जाएं, isn't it? So आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीक में आएगा। सो आई होप आपको, आई विल नॉट से आपको पढ़ने के बाद जितना आप करते जा रहे हैं उतना आपने पढ़ के समझ के रखना है। एक बार ये हमारे सारे मेथड हो गए, फिर आप अपने पास्ट पेपर्स में जाके क्वेश्चंस को उठा सकते हो। अभी नहीं, अभी उठाओगे अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी हम थोड़ा स्टेप वाइज कर, फिर जब हम प्रैक्टिस पे आएंगे। यस चलो ओके, आज के लिए इतना ही। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नहीं, तो दूसरा मेथड पे जाएंगे कि एक आधा करेंगे, फिर दूसरा जब हम दूसरे में पे आएंगे ये एसटीएम टेबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, सेफ्टी फर्स्ट। तो उसको प्लीज़ प्रैक्टिस भी कीजिए कि हाँ दूसरों को भी बताइए कि सेफ्टी क्या चीज़ है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव दिस लिटिल बिट ऑफ लाइफ, मेक इट एंजॉयबल। चलो बच्चे, आज वी विल कंटिन्यू। आई होप आई हैड गिवन वन क्वेश्चन yesterday, so few of you may have done it, or all of you must have done it. I have no doubts.
टाइम फैक्टर है कि किसी को हो सकता है टाइम ना मिला हो, वो केस अलग है. एनीबडी डाउट ऑन दिस so far what we have done? So before I proceed further, कहीं पे भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट है, please let me know. I can go back and we can start again. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे बोलो. सर एक बार फिर से सब एक्सप्लेन कर दीजिए टर्म्स जीओवी, जीएसवी, वीसीएफ ये सब, क्योंकि सर कैलकुलेशन फॉर्मूला देखकर तो हो गया सर, पर वो टर्म्स नहीं समझ में आया अभी तक. ओके चलो I'll take you to the board. फिर वहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. वो टर्म्स मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है कि जीओवी जीएसवी होता है. फॉर्मूला तो पता है कि मतलब यहाँ पुट कर देंगे आ जाएगा, ओके लेकिन एग्जैक्टली होते क्या है ये? बच्चे I'll take you on the board. वहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So very simple. बोर्ड पे चलते हैं. वो आज आपको बोर्ड ठीक दिखे. वैसे तो नेट की होती है, बिकॉज ऑफ समटाइम नेट बिकम स्लो था. वैसे सुबह मैंने क्लास ली तो उनको पूछा, कहते सर बहुत क्लियर दिख रहा है. चलो नेवर माइंड. सो पहले वो टर्म्स कर लेते हैं. ये टर्म्स क्या हैं, उसके साथ ही आपकी जो हमने फॉर्मूला भी किया है उसको भी मैं रिवाइज कर दूंगा क्विकली, सो दैट यू बिकम एब्सोल्युटली अपडेटेड. ठीक है. सो सबसे पहले आपका आ गया कि यार ये जीओवी क्या चीज़ है. वन वी हैव रादर जीओवी से पहले एग्जांपल. आई होप यू कैन सी द बोर्ड. जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है? यस सर, आज क्लियर है. यस सर, आज क्लियर है सर. चलो ठीक है, वेरी गुड. ये मेरा टैंक है कॉलेज पोर्ट. अब इसके अंदर मैंने तेल लोड किया. ये ऑफ कोर्स यहाँ तक मेरा ऑयल है. अब इस ऑयल में ऑयल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, नीचे में कुछ सेडिमेंट भी हो सकते हैं, बीच में पानी मिक्स भी है. और कई बार क्या होता है कि लाइक जब आप ऑयल लोड कर रहे हो तो हमें लोड कर रहा है, इट इज़ नॉट दैट ऑल द टाइम वो हमें प्योर ऑयल ही दे. आज कहीं पे भी चले जाइए, इवन पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कई बार कार में भी पानी भर देते, नहीं थोड़ा बहुत पानी आ जाता है. सो इट इज़ पॉसिबल. सम टाइम यू मे हैव a little bit of water. अब वाटर और ऑयल में तो दुश्मनी हो तो एकदम अलग हो जाते हैं, आस्ते आस्ते होते हैं, इमीडिएटली नहीं. बट अगर मैं तेल और पानी लोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये जिसे हम कहते हैं नीचे में सपोज ये पानी जो हो तो नीचे बैठ जाएगा. तो इस पानी को हम कहते हैं फ्री वाटर. कि जो पानी सेपरेट हो गया उसे हम कह देते हैं फ्री वाटर. अब मैंने अलेज ली यहाँ से जितनी भी मिलीमीटर जो भी है, मैं अपने कैलिब्रेशन टेबल पे जाता हूँ. So with this allege 1.2 I calculate now this whole quantity, ये जो पूरी है including water including everything, because हमें नहीं पता नीचे क्या है अभी. हमने तो allege ली ऊपर and we calculated कि भी इतनी हाइट ऑफ ऑयल है, ये आपकी ऑयल की हाइट थी, लेंथ ब्रेथ से मैंने मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू जितनी हाइट पे तेल था. इस सारी चीज को हम कहते हैं टोटल वॉल्यूम. ऑब्जर्व किया मैंने, दिस इज द टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम इंक्लूडिंग एवरीथिंग. अब अगर मैं हमारे पास एमएमसी है, टीआई टेप्स हैं, या उससे पहले क्या होता था, वी यूज्ड टू टेक अ साउंडिंग रॉड, उसको वाटर फाइंडिंग पेस्ट लगाया. तो मैंने साउंडिंग पहले तो हम साउंडिंग ले लेते थे, यहाँ से लिया तो साउंडिंग रॉड पे इतना ये 10 सेंटीमीटर वाटर फाइंडिंग पेस्ट जो है उसका कलर चेंज हो गया तो मेरे को 10 सेंटीमीटर. आज के टाइम में क्लोज अलेजिंग सिस्टम है तो हम क्या करते हैं, वही टेप से हम इंटरफेस ले लेते हैं कि यहाँ तक मैं लोड करता हूँ. जैसे ये यूटीआई का बॉब जो है पानी को टच करेगा वो अलग अलार्म देगा, उस अलार्म की बीप जो है अलग होगी. सो आई नो, तो मेरे को ये अलेज मिल जाती है. बात एक ही है, अलेज मिले साउंडिंग मिले. आई हैव कैलकुलेटेड भी 10 सेंटीमीटर नीचे फ्री वाटर है, इतना तेल है, इतना नीचे पानी है. अब 10 सेंटीमीटर आई कैन कैलकुलेट लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू ये मेरे पास सपोज वॉल्यूम आ जाता है से 30 मीटर क्यूब. मेरे पास टोटल था, मेरे पास टोटल ये सारा कुछ था. इसमें से अगर मैं माइनस करता हूँ से फ्री वाटर, जिसे हम फ्री वाटर कहते हैं, विथ 30 मीटर क्यूब था. नाउ टोटल ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम में से इफ आई माइनस दिस 30, जो मेरे को क्वांटिटी मिलेगी उसे मैं कहता हूँ ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम. अगर पानी नहीं है, पानी हो सकता है मिक्सअप हुआ होता है, थोड़ा बहुत तो पानी चर्न अप हो जाता है, मिक्सअप होता है, वो आके सेटल होता है, वो दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट बाय एनी मेथड. ओनली टाइम 24 आवर्स 48 आवर्स के बाद ही वो पानी सेटल होगा. सर क्वेश्चंस में ये वो मतलब मेंशन करेंगे कि हमारा वाटर है या नहीं है या था. Sometimes they will tell you कि okay, the allege of the tank is 1.2 and there is 10 centimeter of water or OBQ or ballast water or oily mixture. अब एग्जांपल ये लीजिए, सपोज मैं टैंक को, अब आपने टैंक डिस्चार्ज किए, मेरे को रिपेयर करनी, कुछ करनी, क्रूड ऑयल वॉशिंग भी हमने कर दी, उसके बाद हम वाटर वॉश पानी से उसको धोते हैं. फिर हम जब उसको स्ट्रिप करते हैं
कई बार थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की रह जाएगी जो नहीं स्ट्रिप होती, डन इट। अब वो क्वांटिटी अब मैं लोड पोर्ट पे जाता हूँ, मैं उसी के ऊपर लोड कर देता हूँ। टर्मिनल तो कहेगा, जब वो अलेज लेगा वो कहेगा जी ये सारा का सारा तेल मैंने दिया। अब ये फ्री वाटर नहीं होगा, जीरो क्वांटिटी क्या हो जाएगी। अब जब लोडिंग करने से पहले जो सर्वेयर है वो आपके टैंक्स को चेक करेंगे, यार टैंक्स खाली हैं, उस पर अंदर कुछ है तो नहीं। एग्जाम्पल स्लॉप टैंक, अब उसने उसकी साउंडिंग ली तो उसको मिल गया कि भाई इसके अंदर ऑलरेडी 30 मीटर क्यूब ऑयली मिक्सचर, पानी कुछ भी है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं OVQ। दैट मीन्स ऑन बोर्ड क्वांटिटी की टैंक के अंदर ऑलरेडी 30 मीटर क्यूब पानी, ऑयल, मिक्सचर्स कुछ ना कुछ उसके अंदर है। अब जब आप लोड करते हो तो मैंने 1.2 से निकाल लिया कि सपोज इट इज, मैंने टोटल 2000 मीटर क्यूब, मेरे पास ये अलेज आ गई, अलेज से मैंने कैलकुलेट किया 2000 मीटर क्यूब। अब मैंने 2000 तो लोड नहीं किया ना, क्यों, ये 30 तो मेरे टैंक में पहले था, तो मैं ये 30 माइनस कर दूंगा, तो मैं कहूँगा भी आपने मेरे को 1970 मीटर क्यूब ही खाली तेल दिया, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं OV। अब सपोज आपका टैंक ड्राई था या कुछ भी नहीं बोलता, तब मेरे को उसने लोड किया 2000, उसमें फ्री वाटर है, तो मैं कहता हूँ ठीक है मैंने तेल इतना रिसीव किया 30 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर क्यूब तो फ्री वाटर था। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, दिया है तो दिया, नहीं दिया इफ सपोज देयर इज नो फ्री वाटर। थर्ड केस में क्या होता है कि हमने लोड किया, हमने उसकी डिप भी ली, चेक किया, डिपार्चर से पहले हमें इसके अंदर कुछ नहीं मिला, टोटल सारा जो है आपका ये ऑयल है, देन TOV इज इक्वल टू GOV। तेल है उसके अंदर सारा कुछ जो भी है, देयर इज नो फ्री वाटर, देन वी फॉरगेट अबाउट TOV, we call it is gross absorbed volume। total absorbed volume is equal to gross absorbed volume because there is no water। I hope clear? Sir, understood. Yes sir, GOV understood। या तीसरी चीज एक और आ जाती है कि जो हमने स्टडी की थी, क्या अब हम यहाँ पे तो लोड करते हैं, अब मैंने तो यहाँ पे 2000 मीटर क्यूब तेल लोड किया, इसका मैंने टेम्परेचर भी देखा थर्मामीटर डाल के, वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब जब मैं इसको यूरोप में डिस्चार्ज करने के लिए गया, वहाँ पे भी हमने एलएजीज ली, वहाँ पे टेम्परेचर 10 डिग्री था। जब मैंने वहाँ पे एलएज ली तो तेल तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वहाँ पे मेरे को एग्जाम्पल 1950 मीटर क्यूब मिला एलएज से। अब सप्लायर कहेगा यार मैंने तो 2000 दिया था, आपको 1950 मिला, somebody will lose, तो कहेगा भी ये तो एलएज दिखा रही है। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, बिकॉज ये हुआ क्यों, ये तो टेम्परेचर चेंज से हुआ। इसका सोल्यूशन हम लोड मोड पे करते हैं, तो ये 30 डिग्री था, हम इसका वॉल्यूम मीटर क्यूब का वॉल्यूम 15 डिग्री पे निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर बाय दिस VCF एंड ऑल दैट। अब मैंने इसका टेम्परेचर निकाल लिया, से 30 डिग्री था, सो 2000 इंटू VCF एट 30 डिग्री किया, सो विच वाज से, चलो मैं इसको 1000 कर देता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब VCF फॉर डेंसिटी 0.85, एग्जाम्पल तेरा VCF इज 9880। अब जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया 1000 इंटू 0.98 VCF से, अब ये जो मेरे पास वॉल्यूम आया इसे मैं कहता हूँ GSV। अब ये मैंने निकाल लिया कि भाई दिस इज 988 मीटर क्यूब। बेसिकली GSV है क्या, टेम्परेचर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम कहते हैं। मीन्स 15 डिग्री पे 1000 का कितना वॉल्यूम रह जाएगा, 988। सेम वे यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मेरे को ये 950 मिला 10 डिग्री पे, इसका भी मैं 15 डिग्री पे टेम्परेचर निकालता हूँ VCF। सर आपने VCF 30 का लिया तो कैसे GSV 15 का आएगा? या VCF हम कैसे निकालते हैं, VCF के लिए मेरे को तेल का टेम्परेचर चाहिए, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल प्लस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल, ये दो चीजें चाहिए मेरे को VCF निकालने के लिए टेबल 54 से। यस सर, वो मैं समझ गया, आपने लिखा है VCF 30 डिग्री सेल्सियस राइट नीचे। हाँ, VCF एट 30 डिग्री। तो अगर 30 है तो ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम 30 डिग्री पे नहीं आएगा? ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉट वॉल्यूम एट 30 डिग्री। ये 1000 मीटर क्यूब, ये जो 1000 मीटर क्यूब पे है, इमेजिन कीजिए जिस कमरे में आप बैठे हो कि अगर उस कमरे पे हमने आपके कमरे में 1000 मीटर क्यूब तेल लोड किया था, उसका टेम्परेचर 30 था, अब सर्दियां आ गई, उसका टेम्परेचर जो है तेल का टेम्परेचर 15 डिग्री हो गया, अब वो 15 डिग्री पे तेल जो है 1000 मीटर क्यूब था वो कितना रह जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि सब कम हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होएगा। यस सर नो? यस सर यस। तो सर अब ये कितना, अब वो VCF कितना होगा, 1000 तो था, बट वो 1000 में से जब 15 डिग्री पे टेम्परेचर आए तो कितना होगा, उसके लिए हम हमारे पास ASTM टेबल, ASTM पे जाता हूँ, वहां से VCF निकालता हूँ, उससे मल्टीप्लाई कि सर 15 डिग्री पे ये 988 मीटर क्यूब रह जाए।
तो सर VCF चाहे कितने भी डिग्री पे हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, 30 हो, लेकिन जो GSV आएगा वो हमेशा ऑलवेज 15 डिग्री पे आएगा। 15 पे आएगा। ये VCF का मतलब ही ये है। VCF जो आप अपना टेबल 54 से देख रहे हो, कल हमने किया था ना, टेबल 54 देखा था ना। यस सर। टेबल 54 क्या है कि टेबल 54 बेसिकली मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पे वो दे देता है डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ उसने अलग अलग डेंसिटी है 0.85, 87। यहाँ टेम्परेचर देता है 1 2 3 4 10 20 30। जब मैं 30 पे जाता हूँ अगेंस्ट 0.85, जब मैं इस लाइन पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे ये फैक्टर मिलता है 9880। ये जो फैक्टर है इसे हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। सो वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर का फंक्शन क्या है? इट इज जस्ट टू कन्वर्ट योर वॉल्यूम। जिस टेम्परेचर पे आपका तेल था उस टेम्परेचर से आपके तेल के वॉल्यूम को 15 डिग्री पे वॉल्यूम कितना रह जाएगा। VCF का फंक्शन ही वो। तेल मेरा 40 डिग्री पे था तो मैं यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर पे जाऊंगा, 40 डिग्री के अगेंस्ट इस डेंसिटी पे VCF निकालूंगा और जब उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरा वॉल्यूम 15 डिग्री पे आ जाएगा। सर कि VCF, यस सर, मतलब सर VCF वो हमेशा हम GOV के टेम्परेचर पे निकालेंगे। यस यस। तो मतलब सर ये जो हमें जो VCF निकालना है जो हमारी, तो वो हमेशा स्टैंडर्ड डिग्री पे ही आनी चाहिए। जो GSV हम निकालेंगे 15 डिग्री पे, और बाकी VSF कितना भी डिग्री हो, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड GSV क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब हमने पहले वो डेंसिटी वाले सवाल किए थे तो उन्होंने कहा यार डेंसिटी चेंज जब आप करते हो तो इससे एरर आने के चांसेस, थोड़ी एरर आती है। एंड व्हेन यू आर हैंडलिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स तो ये एरर जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है, क्वांटिटी जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व हो सकता है। अब हमने 100 लीटर तेल लिया, उसमें अगर मेरी एरर आई 5 mm की, 5 मिलीलीटर की, तो कहते छोड़ो यार 100 लीटर में 5 मिलीलीटर क्या होता है, कुछ नहीं है। अगर मैंने 1 मिलियन लीटर लोड किया, 1 मिलियन में अगर आप 5 मिलीलीटर के हिसाब से कीजिए तो हो सकता है वो कोई 1-2 टन आ जाए, तो काफ़ी मनी इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ये VCF वाला सिस्टम आया कि ASTM टेबल जो है डेंसिटी जो आपके तेल की है, इंस्टेड ऑफ शिप पे उसको अपने हाइड्रोमीटर से निकालिए, वो करेक्ट डेंसिटी नहीं है। करेक्ट डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल, चाहे इसकी डेंसिटी निकालनी है, द करेक्ट डेंसिटी इज इन वैक्यूम। बिकॉज योर डेंसिटी, अभी तक तो हमने पढ़ा, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू, डेंसिटी आल्सो गेट्स इफेक्टेड बाय द आपकी जो ग्रेविटी है। इसलिए आपके पास जो उसने डेंसिटी दे दी वो उसने लेबोरेटरी में निकाली कि भाई हम ये डेंसिटी डिग्री पे निकालेंगे, विच इज फाउंड आउट इन लैब। इन द लेबोरेटरी में वो 15 डिग्री एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम। तो अब ये उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया कि 15 डिग्री पे लेबोरेटरी में हम डेंसिटी निकाल के आपको देते हैं एंड फिर आप इसका वॉल्यूम चेंज करते रहिए। वो क्लियर? सर ये जो GSV है ये क्या ग्रॉस Standard. स्टैंडर्ड वॉल्यूम? स्टैंडर्ड वॉल्यूम, बिकॉज इट इज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जो हमने मान लिया कि भी ठीक है 15 डिग्री एक स्टैंडर्ड है, ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ओके सर, समझ गया। ये बेसिक आपको समझ आ गया। वेदर आपने टैंकर पे काम किया, कुछ नहीं है, सिंपल चीज है, फिर आपके माइंड से नहीं निकलेगी। वेरी गुड, आपने जो कहा ऐसा पॉइंट आउट कर दिया, नहीं हम आगे चलते जाएं, पीछे का समझ नहीं आया फिर आपको भी माइंड को ज्यादा टैक्स करना पड़ता है, यार ये क्या हो गया। अब आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे, आपको खुद सोल्यूशन नजर आता जाएगा। चलो, अब ये तो था कि हमने ये वॉल्यूम हैंडल कर लिए। अब हमारे पास मेथड हमने देख लिए थे कि यार ये कार्गो का वेट कैसे निकालें। मेरे को तो वेट चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन पूछते भी भाई वांट टू कैलकुलेट वेट, कैसे टू कैलकुलेट द शिप्स ड्राफ्ट ट्रिम स्ट्रेसेस। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये टेबल 54 में जब हम डेंसिटी और टेम्परेचर पे VCF निकालते हैं, हाँ जी, तो जैसे टेम्परेचर पे देख लिया, उसी पे डेंसिटी देख लिया, उसके आगे सर जैसे किसी भी टेम्परेचर पे देखा है 10, उसके आगे 2 लिखा हुआ है, तो सर वो किस लिए है? वो बच्चे डिफरेंस है, वो बेसिकली इंटरपोलेशन के लिए है। आई विल शो यू दैट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, आई शो यू दिस ASTM टेबल सबके लिए, सब लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं, आई विल कम बैक टू दैट। ये आपका ASTM टेबल है, टेबल 54। आपका यही डाउट है कि सर ये 1 2 ये जो 1 की लाइन ये यस सर। ये क्या है? नहीं डाउट है ना, ये बेसिकली डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 0.0122, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस लास्ट वाले डिजिट में ये 2 का डिफरेंस। तो अगर सपोज मेरी डेंसिटी या इन दोनों के बीच में है 0.845, क्या हो सकता है मेरी डेंसिटी 0.848 849 हो जाए, इन दोनों के बीच में आ जाए डेंसिटी मेरी, या ये दोनों इसके बीच में भी हो सकती है। तब मैं क्या करूँगा, तो मेरे को इंटरपोलेशन ईजी हो जाती है। मेंटली आप उसको इंटरपोलेट कर सकते हो कि मेरी डेंसिटी ऑलमोस्ट इन दोनों के बीच में थी,
से अबाउट 0.847 थी। तो मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट वाला डिजिट पकड़ता हूँ 22, ये 20, डिफरेंस दोनों के बीच में 2 का, सो इसमें से एवरेज कर दो तो 21। आपका VCF क्या बन गया 1.021। कैलकुलेटर में जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं से मैं विजुअली देख सकता हूँ। सपोज मेरे टेम्परेचर में फर्क है, टेम्परेचर अभी यहाँ 0.5 है, टेम्परेचर आपको इन दोनों के बीच में दे देता है 0.75 दे देता है, डेंसिटी भी दोनों के बीच में। जैसे आप ABC टेबल देखते हो तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि यार ये 18 था, ये 14, तो 18 एंड 14 इन दोनों के बीच में एवरेज 14 और 18 के बीच में कितना 4 का डिफरेंस है, उसका एवरेज 2, तो 14 और 2 16, 1.016। इसमें कितना है 12 और 16, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, तो 2 ऐड किए 14। तो अब 14 और 16 के बीच में इसकी मैंने एवरेज निकालनी है, बिकॉज मिडशिप आई मीन ऑलमोस्ट सेंटर में ही है डेंसिटी। तो 14 और 16 के बीच में 15, तो मेंटली हो गया 1.05 इसके लिए दिए हुए ये जो आपके कॉलम्स हैं। ओके, थैंक यू सर। या तो चलो वी गो बैक टू दिस कि अब हम क्या कर रहे थे कि यार ये जो हमारी वॉल्यूम्स थे कि उससे हमने मास कैसे निकालना है। तो हमारे पास 2 चीजें थी। फर्स्ट था हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम से मैं जो भी आप कह लीजिए अलेज है, सपोज आपको अलेज दी हुई है, तो अलेज से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ एंड वॉल्यूम से मैं वेट निकाल सकता हूँ बाय कैसे, GOV इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू GOV इंटू VCF इंटू WCF, मेरा वेट आ गया। दूसरा क्या था कि यार मेरे को वेट दिया हुआ है, तो ये तो हम निकालते हैं, वेट इज इक्वल टू बेसिकली GOV इंटू VCF इंटू WCF, तो इसका फॉर्मूला सिंपल है। अब दूसरा केस था यार मेरे को वेट दिया, जैसे आपने 38 डिग्री पे उसका वेट निकाल लिया, 40 डिग्री पे वॉइस के उसमें यार 1 मीटर वाले चाहिए, वहां से आपने वॉल्यूम निकाला और वेट निकाल लिया। अब उस वेट को मैं लोड बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ, तो हाउ टू कन्वर्ट दिस वेट इनटू अलेज, सो वेट वॉल्यूम टू अलेज। अब ये कैसे निकालते हैं कि हम जो वेट है सर VCF इंटू सर VCF सर WCF वैक्यूम में कि एयर में सर, ये इधर जो है ये वैक्यूम में, अभी वैक्यूम में ही चल रहा है राइट। VCF is a बच्चे factor, VCF is nothing called air में या vacuum, VCF is a factor to convert। ऑलराइट। अब हमारे पास वेट था, जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास 1000 मेट्रिक टन तेल है, इसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट 30 डिग्री। मैं कैसे निकालूंगा, वेट डिवाइड बाय VCF, WCF आई कैन कैलकुलेट डेंसिटी इन वैक्यूम माइनस 0.00, दिस विल गिव मी क्या देगा ये GSV। वेट डिवाइड बाय WCF इज व्हाट, भूल गए कैसे आया ये GSV, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने GOV इंटू VCF इसी को कन्वर्ट किया ना मैंने, ये देखो वेट GOV इंटू VCF इंटू WCF। अब ये जो GOV इंटू VCF है उसे हम GSV कह देते हैं। ये जो चीज है, ये वाली आइटम है, इसे हम क्या कह रहे हैं, GSV कह रहे हैं कि नहीं कह रहे, GOV इंटू VCF इज GSV। इक्वेशन को मैंने चेंज किया। अब वेट डिवाइड बाय WCF विल गिव मी, अगेन आई शो यू, वेट इज इक्वल टू GOV VCF इंटू WCF। अब ये जो मेरी आइटम है GOV इंटू VCF, इसे मैं GSV कहता हूँ, यस और नो? यस सर। इजंट इट? तो मैं लिख देता हूँ कि यार वेट इज इक्वल टू GSV इंटू VCF। अब मेरे को GSV निकालना है, तो मैं ये VCF WCF को यहाँ लाता हूँ, वेट अपॉन WCF तो GSV, वही मैंने यहाँ पे लिखा इसी इक्वेशन से। अब मेरे पास GSV आ गया, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए वॉल्यूम है अलेज कि इतने वेट की 1000 मीटर क्यूब मेट्रिक टन का 30 डिग्री पे कितना वॉल्यूम होगा। अब मेरे पास GSV आ गया एंड GSV का भी मेरे को पता है, GSV इज इक्वल टू GOV इंटू VCF। अब मेरे को 30 डिग्री पे चाहिए, तो मेरे को 30 डिग्री का ही VCF देखना है। VCF को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, GSV डिवाइड बाय एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड विल गिव मी ऑयल का वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं यहाँ ले आया GOV। अब आपने GSV कैलकुलेट किया है, GSV डिवाइड बाय VCF, जिस टेम्परेचर पे, लोडिंग टेम्परेचर पे आपने उसका वॉल्यूम निकालना है, इट विल गिव यू GOV एट 30 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया 30 डिग्री पे, डिवाइड बाय एरिया विल गिव यू द हाइट ऑफ ऑयल, हाइट ऑफ टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल विल गिव यू ऑयल। तो सर ये GSV हमेशा 15 डिग्री पे रहता है? तो GSV का मतलब ही है कि वॉल्यूम एट 15 डिग्री। ओके, थैंक यू सर। वाली टर्म यूज हो रही है ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। अब अभिजीत आपका नाम है, मैं कहता हूँ यार EJ, यार EJ का मतलब है अभिजीत। तो
वॉल्यूम एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने की बजाय हम उसे बोल देते हैं यार जीएसवी। ओके सर। एक क्वेश्चन करें। तो सर इसके अलावा भी और कुछ मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं कि बस यही है, इसी पे सारे बेस्ड हैं? इसी पे सारे बेस्ड। ये आपने समझ लिया, इतना क्लियर हो गया। अब Yes, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कैसे लिखता है, आप यही कंसेप्ट आपने लगाने हैं। ये आपने लिख लिए हैं, ये आपने लिखे नहीं है तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आप इसको लिख लीजिए कि यार आई कैन, इफ मेरे पास वॉल्यूम है तो वहाँ से वेट कैसे निकालना है, एंड अगर मेरे पास वेट है तो वॉल्यूम कैसे निकालना है। वॉल्यूम आ गया, अलेज निकालनी तो हमें आती है, डिवाइड बाय एरिया। सर अगर वेट में WCF नहीं लगाएंगे तो वेट इन वैक्यूम ही आएगा ना? अगर अब आपको वेट इन वैक्यूम चाहिए तो हम क्या करते हैं, WCF नहीं, ओनली GOV इंटू VCF करते हैं। यस, GOV इंटू VCF, वो आपको देगा GSV। सर अब उस GSV को, GSV मीन्स 15 डिग्री पे आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब मैं इसको 15 डिग्री की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ जो मेरे को दी हुई है 85, बट वो वैक्यूम में है। उस वैक्यूम की डेंसिटी से मैं जब GSV को मल्टीप्लाई करूंगा तो वेट भी वैक्यूम में ही आएगा, मास बोलते हैं जिसे। सर अगर मैं डेंसिटी इन एयर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वेट इन एयर आएगा। ये सर जो वो 0.0011 से सब्ट्रैक्ट करके। करेक्ट, वो आपका बुआंसी फैक्टर, आपने आपके लेवल पे उसको याद रखिए, वो फैक्टर सेम रहेगा 0.0011, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यही हमने किया। ये देखो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन आपने जो कल हमने लिखा था कि टैंक डायमेंशंस इतनी है, डेंसिटी दी हुई है 15 डिग्री, लोडिंग टेम्परेचर 36 है एंड मिनिमम अलेज 1.2 मीटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वॉयज एट ऑल टाइम्स एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 44। तो हम क्या करेंगे, पहले 44 डिग्री पे मेरे पास अलेज 1.2 होनी चाहिए तो मैं मैक्सिमम वॉल्यूम निकाल सकता हूँ कि मेरे टैंक में 44 डिग्री पे जब तेल आता है तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए, वो मैंने निकाल लिया। बिकॉज उसने मेरे को अलेज दे दी भी 1.2 मीटर है, तो 12.5 प्लस 1। जब जहाज 44 डिग्री पे पहुंचेगा तो मेरे टैंक के अंदर वो तेल एक्सपैंड करके इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, 4329। अब डेंसिटी दी है 15 डिग्री पे, टेम्परेचर 44 है, टेबल 54 से VCF 0.9754। अब जब मैं इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास ग्रॉस 15 डिग्री पे वॉल्यूम आ गया, GSV आ गया इज इक्वल टू सो मच। अब जैसे आप कह रहे थे कि मास इन वैक्यूम मेरे को निकालना है, तो मैं इस वॉल्यूम को डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन वैक्यूम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास मास इन वैक्यूम ही आएगा, जिसका मेरे को मतलब है इसका यूज ही नहीं शिप। मेरे को तो एक्चुअल मास इन एयर चाहिए ना। अब वेट ऑफ ऑयल या मास इन एयर, जो भी आप कहना चाहते हो, क्वांटिटी ऑफ ऑयल GSV इंटू WCF। अब WCF यू नो हाउ टू कैलकुलेट, वैक्यूम की डेंसिटी 15 डिग्री की डेंसिटी जो दी है उसमें से 0.0011 माइनस किया, अब ये आपके पास क्वांटिटी आ गई इतनी। मास इन वैक्यूम सर ये चेंज हो सकता है वॉयज के अंदर, बट वेट नहीं चेंज होता है पूरे वॉयज में। करेक्ट, वेरी। मास एंड वेट इज सेम थिंग, मास एंड वेट में कोई फर्क नहीं। दोनों हम उतना डीप फिजिक्स में नहीं जा रहे, जहाँ तक हमारे न्यूमेरिकल हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, व्हेन वी से मास ऑफ ऑयल लोडेड, वो भी हम ये 3, 4, 7, 9 इसी की बात कर रहे हैं। टेक्निकली तो अगर आप मास बोलते हो फिर तो ये मीन्स इन वैक्यूम आ जाता है, एंड वेट जब बोलते हैं तो वो एयर में आ जाता है। बट एनीवे उससे कंफ्यूज नहीं होना, सो यू कैन राइट मास ऑफ ऑयल इन एयर, वो भी एक ही बात है, वेट ऑफ ऑयल इन एयर वो भी एक ही बात है। तो हम ज़्यादा डीप फिजिक्स में तो जा नहीं रहे, हम तो अपने शिप में ही हैं, तो हमें समझ आ रहा है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन एयर, क्वांटिटी मीन्स वो भी एयर में ही है, ओके। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यस, ये मास बेसिकली होता है। सर अगर इस स्टेप को हटा दे तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, नो नीड, आप लिखिए ना, कोई नहीं कटेगा इसके मार्क्स, नॉट रिक्वायर्ड। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हाँ यार अगर मैं वैक्यूम्स की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तब मेरे पास मास वैक्यूम में आएगा। नो नीड टू डू दिस, मास इन वैक्यूम की कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ओके। यस सर। चलो अब कैलकुलेट द अलेज। लोड बोर्ड टेम्परेचर 36 है, GSV हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, वही GSV मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। देन आई मल्टीप्लाई द VCF एट 36, क्योंकि मेरे को 36 पे इसका वॉल्यूम चाहिए, 36 पे VCF निकाल लेता हूँ, डेंसिटी तो सेम है। अब GOV एट 36 इज इक्वल टू GSV डिवाइड बाय VCF एट 36। आपके पास 36 डिग्री पे जब आपने लोड करना तो आपके टैंक में इतना ही वॉल्यूम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, कैसे लोडिंग स्टॉप करूँगा, मेरे को अलेज कैलकुलेट करनी कि कितनी अलेज पे मैं लोडिंग स्टॉप करूँ। वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया, हाइट ऑफ ऑयल, ये आपने ख्याल रखना है। जब अलेज निकालनी है 12.5 प्लस 1 मीटर, वेरी कॉमन मिस्टेक,
हम सीधी हाइट ऑफ टैंक माइनस हाइट ऑफ ऑयल कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबका आ गया था आंसर। सर ये 1 का फंडा क्या है 1 वाला? ये बच्चे 1 मीटर अलेज पोर्ट इज अबव द टैंक। ओके सर समझ गया। क्वेश्चन में जो है ना, अलेज पाइप एक्सटेंड्स 1 मीटर अबव द टैंक। ओके, हाँ जी बोलिए बच्चे। चलें एक क्वेश्चन करें नेक्स्ट। चलो ओके, तो आज के लिए ये नहीं है, ये सिंपल है। ये क्वेश्चन थोड़ी सी वेरिएशन है, मैंने आंसर भी नीचे लिखा है। शिप हैज गॉट 2 टैंक्स, टैंक्स की डायमेंशन दी है। पोर्ट साइड में 163 मेट्रिक टन ऑफ ऑयल है, उसकी आपको डेंसिटी दी है। स्टारबोर्ड साइड में मीटर क्यूब ऑयल है, 43 डिग्री उसका टेम्परेचर। स्टारबोर्ड साइड से पोर्ट साइड में तेल ट्रांसफर किया उसने, 63 उसमें टोटल था, 4 मीटर क्यूब वो कहता है अनपम्पेबल है, 59 मीटर क्यूब उसने स्टारबोर्ड टू पोर्ट ट्रांसफर किया। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी इन पोर्ट साइड टैंक एंड व्हाट इज द अलेज, व्हाट विल बी द अलेज इन पोर्ट साइड टैंक। क्वेश्चन लिख लीजिए। सर शेयरिंग बंद कर दीजिए, हो गया सर। ओके ठीक है, आपके पास 2 टैंक्स हैं। एक टैंक में आपके पास ऑयल है 163 मेट्रिक टन, आपके 63 मेट्रिक टन है। यहाँ पे आपका था मीटर यस क्यूब, सर 263 मेट्रिक क्यूब है, तो उसने इसका टेम्परेचर दे दिया, दिस इज एट 43 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो मास है। उसने ट्रांसफर किया ऑयल फ्रॉम स्टारबोर्ड टू पोर्ट। कितना ट्रांसफर किया? तो 4 कम कर दीजिए, 259 क्यूब ऑयल इज ट्रांसफर टू पोर्ट साइड टैंक। अब जब ये तेल इस टैंक में आया तो हमें कैलकुलेट क्या करना है कि यार इसके अंदर मैक्सिमम ऑयल कितना आ गया है और उसकी अलेज कितनी है, दैट्स ऑल। अब आपने 259 जो कि डिग्री पे है उसको ट्रांसफर किया है। कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द वेट ऑफ दिस 259 मीटर क्यूब? जो 43 पे उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हो? यस सर। इनकी डायमेंशंस एंड टैंक की आई थिंक 14 by 9.83 मीटर। कैलकुलेट द वेट, आपके पास सीधा एक आंसर आ गया कि इतना वेट ट्रांसफर हुआ, टोटल वेट सो मच। फाइनली मेरे पास वेट आ गया, डेंसिटी मेरे को दी है, उस वेट का मैं वॉल्यूम निकालूंगा कि ट्रांसफर करने के बाद टेम्परेचर कितना आ गया 7। कि जब आपने इसको ट्रांसफर किया फुल तो फाइनल टेम्परेचर जो है आपका, फाइनल टेम्परेचर इज 27 डिग्री। अटेम्प्ट कीजिए 259 मीटर क्यूब के कितने मेट्रिक टन बने जो मैं इसमें ऐड करूं। हाउ मच यू गॉट? 259 मेट्रिक टन ली है, टेम्परेचर 43 VCF WCF 9780 VCF है, उसको मल्टीप्लाई करके देखिए हाउ मेनी मेट्रिक टन मैं यहाँ पे लिखूं। सर अलेज कितना है सर आंसर में? फाइनल अलेज इसका है 1.52 0.53 आ रहा है सर। ओके गुड। हाउ मच यू गॉट द वेट हियर? 59 एट 43 का कितना वेट बना? सर 225.5 5. और 6 सर 60 226 सबका इतना आ रहा है, 225.6 आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है? सर मैं 229.372 आ रहा है सर। 5.37 2.372 आ रहा सर। करेक्ट है। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, 225 को मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास टोटल आ गया 388 पॉइंट मेट्रिक टन आपके पास आ गया। इस टोटल ऑयल का व्हाट विल बी द वॉल्यूम 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ गया। सेकंड मेथड, वेट इज गिवन डिवाइड बाय WCF will get you GSV डिवाइड बाय CF at 27 will give you the GOV at। सर मैंने VCF at 43 डिग्री को 0 पॉइंट में ले लिया है, इंस्टेड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस सर 5 डेसिमल प्लेस लिया, इसलिए सर वेट 229.372 आ रहा। कोई बात फर्क पड़ सकता है। नॉर्मली VCF को 4 डिजिट तक ही रखिए, ठीक है। सकता है उसमें भी फर्क आएगा कई बार, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका VCF है, या आप इसको इंटरपोलेट करके 9882 ले लेते हो तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा, डजंट मेक अ डिफरेंस। प्रिंसिपली ये इंटरपोलेशन में थोड़ा सा फर्क रहेगा, 1 आधे टन का फर्क आएगा, डजंट मेक अ डिफरेंस सर। बट अलेज एट द एंड 1.53 आ रहा। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी कितना आ गया वॉल्यूम है? 27 सर 440.582 440.582। ओके वेरी गुड। अब ये आपका दिस इज द वॉल्यूम है 27 इजंट इट। अब इसको आप एरिया से डिवाइड कीजिए, आपके पास अलेज आ जाएगी। यस सर। हाइट ऑफ ऑयल आ रही 3.21। Yeah, height of oil is 3.21, allege 1.52. Quickly, you want me to show you the solution? कि हो जाएगा? हो गया सर। चलो good. Anyway, just compare, देख लीजिए। So, quantity of oil, starboard side 263, temperature 43, density 0.8917 आपने निकाला, WCF निकाला, and then how much quantity you transfer? 263 minus 4,
इंटू VCF इंटू WCF, आपके पास टन्स आ गए। इतना टन आपने ट्रांसफर किया, उसको मैंने एडअप किया 163 में 225.89, टोटल ऑयल इन पोर्ट साइड टैंक इज 388.89। टू कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड अलेज इन पोर्ट साइड, फाइनल टेम्परेचर 27, क्वांटिटी आपने निकाल ली थी 388.9 और 89 जो भी आपके पास आई है उसका मैं पहले GSV निकालता हूँ। दिस इज मास डिवाइड बाय WCF, आपके पास GSV आ गया। VCF at 27, that will give you the GOV at GSV divided by VCF will give me the GOV, and then 440 का मेरे को हाइट ऑफ ऑयल कितना है डिवाइड बाय एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, so 440 is equal to 14 into this into height 3.21 1.5। चलो अब आपने कर लिया है, so I understand। अब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन द वॉल्यूम एंड द वेट। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ या रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड वेट, कि वॉल्यूम है तो उसको वेट कैसे बनाना है, वेट आ गया तो फिर उसको वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम आ गया तो अलेज इज वेरी इजी। चलो हो जाएगा बच्चे सबका। एनीबडी एनी डाउट, क्या कहते हो, ऑल क्लियर? यस सर, क्लियर। एनीबडी वांट्स टू हैव एनी डाउट प्लीज डोंट हेजिटेट, ठीक है। अगर आपको आ गया सबको सो इट इज सिंपल, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने लिख लिया, अपनी बुक पे लिखिए, वीकेंड पे थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट वीक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दीजिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दें, यहीं से दे देता हूँ मैं, ये लो। मैं देखता हूँ मेरे को टाइम मिलेगा, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है, पास्ट पेपर्स के ना, वहाँ से निकाल के आपकी मेल में डाल दूंगा मैं, ओके। इसको लिख लीजिए फिर। चलो हो गया बच्चे? सर एक चीज दोबारा कंफर्म करना था सर। हाँ जी बोलो। सर जो अलेज पाइप की हाइट सर इंक्लूडेड रहती है, जैसे कोई भी क्वेश्चन में अलेज पूछता है तो सर उसमें वो अलेज पाइप की हाइट इंक्लूडेड रहेगी कि उसको एक्सक्लूड करके बताना है अलेज? या देखो बच्चे, जैसे टैंक है तो टैंक के ऊपर जो आपकी अलेज पाइप होती है, आई थिंक इफ आई हैव, मैंने आपको दिखाया था स्केच के, नहीं इसमें नहीं आई, तो आई शो यू व्हाट इज अलेज पोर्ट। या इसमें होगा ये देखिए, दिस इज द अलेज पोर्ट। अब हम इसका कैप खोलते हैं, यहाँ से हम MMC डालते हैं, तो आप जो अलेज हो तो यहाँ से ले रहे हो, इजंट इट सर? तो ये जो हाइट है वो आपको दे देता है कि 1 मीटर है, हाफ a मीटर, 0.7 जितनी भी है। एक्चुअल अलेज जो है वो तो टैंक की या डेक से शुरू होती है, इजंट इट? यस सर। एम्प्टी स्पेस। तो मैंने आपको यही 2 मेथड बताए थे कि यार सपोज वो कहता है कि अलेज इज 1.2, द हाइट ऑफ दिस अलेज पोर्ट इज 1 मीटर, दैट मीन्स माइनस अगर मैं 1 करता हूँ तो अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो तो खाली 0.2 मीटर ही है, इजंट इट सर। इसी का यही मेथड है कि सपोज मेरे टैंक की हाइट 10 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो मैं उसको क्या करता हूँ 10 + 1 11 माइनस 1.2, बात वही आ गई, अभी वही आंसर आएगा। यस सर, जैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि थ्रू आउट द वॉयज अलेज, मतलब एट मैक्सिमम टेम्परेचर अलेज शुड बी 1.2 मीटर। यस वो यहाँ से एंड द ओके सर, बस यही कंफर्म करना था सर। all the तो time- वो हम अलेज हाइट जो वो पाइप की हाइट है उसे भी इंक्लूड करेंगे सर। वेरी राइट। थैंक यू सर। सिंपल मेथड है कि 10 मीटर टैंक की हाइट है, सो 10 + 1 इसको कर दो माइनस, बिकॉज उसने अलेज दिया वो भी यहीं से दी है, तो 10 + 1 11 माइनस 1.2 किया मैंने, बिकॉज अलेज तो यहीं से ले रहे हैं हमेशा। ओके गुड, चलो आपकी भी क्लास होगी नेक्स्ट, सो सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय, हैव सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, सेम टू यू। थैंक यू सर।